Hello dear students, I am Rajesh Diajare sir and in standard 9 CBSE course book by NCERT we are going to study the second lesson and we can say first poem titled The Road Not Taken by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, जो कि बहुत फेमस पोयम है, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। तो ये जो पोयम है ये एक बहुत ही पॉपुलर पोयम है जो कि चॉइसेस मतलब डिसीजन मेकिंग के बारे में है और ऐसी चॉइसेस जो हमारे जीवन को आकार देती है, शेप देने का कार्य करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन पोएट है जो बहुत सिंपल तरीके से लिखते हैं पर एकदम इनसाइटफुली लिखते हैं, एकदम दिल से लिखते हैं। और ये जनरली जो कॉमन एक्सपीरियंसेस है या ऑर्डिनरी साधारण से जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं जीवन के, उन्हीं के बारे में ये पोएम्स लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम पूरी पोएम एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टैंजा बाय स्टैंजा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी समरी देखेंगे हिंदी में। So poem starts with the text. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads to one or two leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. This poem is written by Robert Frost, and now we will see the summary of stanza by stanza. In the first stanza, in the text or in the lines, poet says, two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. In this stanza, there is a word diverge. Diverge means separated, means विभक्त, मतलब कि अलग होना. Yellow wood means the leaves on the trees are yellow, or we can say this as a phrase which suggests it as the autumn season. मतलब कि राइटर येलो वुड इस इन दो वर्ड्स के या इन फ्रेज के जरिए हमें बताना चाहते हैं, ऑटम सीजन के तरफ इशारा करना चाहते हैं। ऑटम सीजन का मतलब होता है पतझड़ वाला मौसम, जहां पे जब पेड़ों की पत्तियां पीली जो होती है, पीली पड़ जाती है ना, वो या सूख जाती है, उस सीजन को बोलते हैं ऑटम, मतलब कि पतझड़ हिंदी में बोलते हैं और मराठी में इसे शरद ऋतु बोलते हैं। देन अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बशेस, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ी हुई प्लांट्स या मतलब कि पौधे या पेड़ या फिर जो बशेस मतलब झाड़ियां। अब in this stanza the poet has come into the deep autumnal wood where two roads have diverged into two ways like a fork. Immediately the poet understands that as a traveler, traveling both the roads is impossible. Here the two roads symbolize two ways to go in life. The
poet first thought of traveling both the roads and then discarded the idea, then he finds himself in dilemma about the choice of roads. He found that the first road has bent in the undergrowth, means bushes. The undergrowth here represents the unknown वर्ल्ड. मतलब कि क्या है कि जो पोएट है वो जब एक डीप ऑटमनल वुड में, जब जो बहुत मतलब एक ऐसे जंगल में या ऐसे रास्ते के ऐसे एक प्लेस पर आए हैं जहाँ पे पतझड़ के वजह से पतझड़ है, जहाँ पे पेड़ पूरी पत्तियां बची है और वहां से दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब कि सेपरेट हो रहे हैं. और ये जो रास्ते किस तरह से सेपरेट हो रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से, जो ये इस तरीके से बोल सकते हैं हम सेपरेट हो रहे हैं. मतलब एक रास्ता एक तरफ जा रहा है, दूसरा एक तरफ दूसरी तरफ जा रहा है, और फॉर्क के तरह ये जो है ये सेपरेट मतलब कि डाइवर्ज हुए हैं दोनों रास्ते. अब यहाँ पे तुरंत में राइटर पोएट जो है, पोएट समझ जाते हैं कि क्योंकि ही इज अ ट्रैवलर, वो एक प्रवासी है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो इस ट्रैवलिंग में दोनों रास्तों पर एक साथ चलना तो इम्पॉसिबल है, राइट. तो यहाँ पे जो दो रास्ते बोला गया है, जो दो रोड बोले गए हैं, यहाँ पे रोड का मतलब आप ये समझ सकते हैं, पोएट दो रोड के जरिए बताना चाहते हैं कि जीवन में मिले हुए दो ऑप्शंस, दो जीवन जीने के लिए दो चॉइसेस की तरफ, दो रोड से वो दो अलग अलग चॉइसेस को इंडिकेट करना चाहते हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. देन द पोएट फर्स्ट थॉट ऑफ ट्रैवलिंग बोथ द रोड्स. पोएट फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं तो दोनों पे चलूंगा पहले तो, फिर बोलते कि नहीं, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ट्रैवल ऑन द बोथ रोड्स. तो वो बोलते कि नहीं, दोनों रास्तों पर तो चलना इम्पॉसिबल है. तो फिर पोएट वो जो आइडिया है दोनों रास्तों पर एक साथ चलने की, वो डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब कि वो आइडिया को तुरंत अपने दिमाग से हटा देते हैं. अब डिसाइड कर दे कि मेरे को एक ही चुनना है. अब दो रास्तों में से एक चुनना है, तो कौन सा रास्ता चुनूं, क्योंकि ये दो रास्ता मतलब सिर्फ ट्रैवलिंग के जरिए हमें जिंदगी जीने में जो रास्ते हैं, मतलब को जो लाइफ के तरीके हैं, हमें जो ऑप्शंस है जिंदगी जीने के, उनके बारे में बात हो रही है. तो पोएट जो है अब कंफ्यूज है कि भाई दो में से मैं कौन सा रास्ता चुनूं, कौन सा रास्ता सही है. तब वो डीपली जो दो में से पहला रास्ता है उसके तरफ देखते हैं, और देखने के बाद वो जब उसे बारीकी से देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ये जो रास्ता है, जो पहला वाला रास्ता है, वो बेंड हुआ है अंडर ग्रोथ तरीके से, मतलब कि वहां पे पूरी झाड़ियां ही झाड़ियां है और वहां से वो बेंड हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है. और वो जो अंडर ग्रोथ है, मतलब कि जो बशेस की जो झुकी हुई झाड़ियां और वहां से बेंड होना, इसके जरिए ये बताकर पोएट जो है एक अननोन वर्ल्ड की तरफ, मतलब कि अनजान दुनिया के तरफ इशारा करना चाहते हैं. मतलब कि वो रास्ता एक अनजान दुनिया के तरफ जाता है, ऐसा पोएट यहाँ पे कहते हैं. और करके फिर पोएट जो है ऑब्वियसली कौन सा रास्ता चुनते हैं, सेकेंड वाला रास्ता जो है वो चुनते हैं. तो सेकेंड स्टैंजा में आगे क्या बोलते हैं पोएट, देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. पोएट क्या बोलते हैं फिर, और करके क्योंकि पहला वाला जो रास्ता है वो रास्ता मुझे बेंड दिखा, और करके मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड वाला रास्ता चुना, जो कि, और ये रास्ता चुनने के पीछे कारण है, मुझे ऐसा लगा कि ये रास्ता थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है और ये रास्ते पर थोड़ा सा बेटर क्लेम लग रहा है, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है पहले वाले से कंपेयर करें तो. और क्योंकि उसका रीजन उन्होंने ये दिया है, क्योंकि इस रास्ते पर वांटेड वियर है, मतलब वो खुद चाहता है कि हाँ वो लेस यूज्ड है, वो वाला दूसरा जो रास्ता है वो वहां से कम लोग गए हैं. मतलब ये बोलकर पोएट क्या करना चाह रहे हैं कि in this stanza the poet selects the road that appears at first glance to be less traveled. मतलब कि दोनों रास्तों में से एक भीड़भाड़ वाला रास्ता था जो डेंस था, मतलब बहुत ज्यादा लोग उसमें चले हुए थे और बेंड हो गया था, और दूसरा जो रास्ता है वो कम लोगों ने ट्रेवल किए थे, करके भीड़भाड़ वाले रास्ते की तरफ न जाकर पोएट ने कम लोगों के द्वारा ट्रेवल किया हुआ रास्ता चुना. मतलब कि पोएट ने क्या किया, तो जिस डायरेक्शन में ज्यादातर लोग जाते हैं उसको ना चुनकर एक कम लोगों के द्वारा चुना हुआ ऑप्शन जो है वो अपनी लाइफ में चुना. दिस स्टैंजा सजेस्ट दैट
he has an independent spirit and does not wish to follow the crowd। मतलब कि इन दो लाइनों से पोएट बताना चाहते हैं कि मैंने भीड़ जहां जा रही है उस भीड़ को फॉलो न करते हुए मैंने मेरा एक अलग रास्ता बनाया। आफ्टर अ मोमेंट ही चेंजेस हिज माइंड कंक्लूडिंग दैट बोथ रोड्स आर इक्वली वर्न आउट। अब क्योंकि पहले उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि भाई पहला जो रास्ता है वो अलग है और दूसरा रास्ता अलग है, पर बहुत बारीकी मतलब थोड़ी पल भर में एक बार उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं सेकंड वाले रास्ते को से सफर करूंगा, ट्रेवल करूंगा, और उसके बाद में अचानक से उन्होंने फिर मोमेंट के बाद में एक पल भर में उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मुझे दोनों रास्ते एक जैसे दिखते हैं। क्यों एक जैसे दिखते हैं उसका भी कारण उन्होंने थर्ड स्टैंजा में फिर दिया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो जो पोएट है, पोएट ने फिर क्या कहा कि leaves cover both roads equally. No one this morning has yet taken either path, for the leaves lie undisturbed. This symbolizes that the choices in life open to the poet are both unknown to him. अब पोएट ने क्या किया, अब बोले मैंने एक डिसीजन तो ले लिया हूं, पर उस पर्टिकुलर सुबह में दोनों रास्ते मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। क्यों एक जैसे दिख रहे हैं? क्योंकि दोनों रास्तों पर कोई भी अब तक चला हुआ नहीं है उस पर्टिकुलर दिन दोनों, और क्योंकि जो पत्तियां है वो ट्रॉडन ब्लैक है, मतलब कि पत्तियों की वजह से जो रास्ता है वो पत्तियां क्रश की हुई है, जैसा का वैसा है वहां पे। क्योंकि अगर मान लो किसी रास्ते पर अगर लोग चले हुए हो तो वहां पे जो पत्तियां है गिरी हुई वो भी क्या होंगी, वो अलग थलग होंगी, पर वो जैसी की वैसी है, अनडिस्टर्ब्ड है। और करके मैंने डिसाइड किया कि मुझे समझ गया कि मैं दोनों रास्ते अब एक जैसे है, अब फिर से मुझे डिसाइड करना है कि कौन से रास्ते पर जाना है। पर मैंने जो पहले डिसीजन किया हूँ मैं उसी डिसीजन के तहत सेकेंड जो रास्ता है जो कम लोगों ने चुना हुआ है मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। बोले फिर और आगे भी ये बोलते हैं कि दिस सिंबलाइजेस दैट द चॉइसेस इन लाइफ ओपन टू द पोएट आर बोथ अननोन टू हिम। द पोएट रिमेन्स कमिटेड टू हिज डिसीजन टू टेक द रोड ही हैड प्रीवियसली सिलेक्टेड। उन्होंने पहले जो सिलेक्ट किया हुआ है एक रास्ता मतलब सेकेंड वाला, उसी कमिटमेंट पर कायम रहे वो, एंड सेइंग दैट ही विल सेव द अदर रोड फॉर अनदर डे। पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं जो एक रास्ता बचा हुआ है, मतलब एक्चुअल में पहला पर इनके लिए दूसरा है ना, जो बेंड हुआ रास्ता है जो इन्होंने रिजेक्ट किया, बोले मैं इस रास्ते पर भी चलूंगा, पर इस रास्ते पर अभी नहीं चल सकता ना, तो बाद में चलूंगा। जबकि बोलते मुझे ये भी पता है, जबकि मुझे ये भी मालूम है कि ये मतलब दोनों रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक रास्ता दूसरे रास्ते से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, एक रास्ता दूसरे की तरफ लेके जाता है, और करके शायद मुझे एक रास्ता चुनने के बाद में फ्यूचर में दूसरे रास्ते पर चलने का मौका शायद ना मिले, फिर भी मैं डिसाइड करता हूं कि अगर मैंने अभी जो चुना हूं, मतलब सेकेंड रास्ता जो मैं अभी जो चुन रहा हूं, अगर उस पर मुझे असफलता मिले, अगर मैं फेल हो जाऊं या मैं सेटिस्फाइड ना रहूं, तब मैं जो दूसरा रास्ता है जो मैं अभी के लिए नहीं चुन रहा हूं, जो बेंड हुआ रास्ता है, अंडर ग्रोथ वाला है, वो रास्ते पर मैं चलूंगा। मतलब कि मैं जीवन जीते वक्त एक जो वे है जीवन जीने के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड में मैं अभी चलना चालू किया हूँ, जो मैक्सिमम लोग जहाँ पे नहीं जाना चाहते मैं उस फील्ड में जा रहा हूँ। अगर इस फील्ड में मुझे अगर असफलता मिलती है, अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो मैं वो जो दूसरा रास्ता है उस रास्ते को डिसाइड करूंगा। जबकि बोले मुझे ये भी मालूम है कि शायद तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी और मैं वो जो रास्ता बाद में चुनने के लिए रख रहा हूँ शायद वहां चलने का मुझे मौका ही ना मिले, ये भी हो सकता है, ये भी उन्होंने कहा है। फिर लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, क्या कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। इसमें साई का मतलब होता है एक सुस्कारा लेना, मतलब ऐसा करते हैं ना वो। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो आप
खुश हो, सेटिस्फाइड हो अपनी जिंदगी में करके कर सकते हो, या फिर आप रिग्रेट के साथ कर सकते हो कि पछतावे के साथ कि नहीं मेरा रास्ता चुना हुआ जो था वो गलत निकला। तो बोलते हैं कि अब इन years to come the poet says he will be telling others about the choice he made, meaning that he will talk about what decision in life he took. While doing so, he will sigh either with relief that he made the right choice or with regret that he made the wrong choice. Whether right or wrong, the choice will have had a significant impact on his life. मतलब कि बोलते हैं कि आने वाले सालों में, मतलब कि जो 50 सालों बाद या 60 सालों बाद, मतलब जब इसका पूरा रिजल्ट हो जाएगा बहुत सालों के बाद में, जब फ्यूचर में मैं मुड़कर देखूंगा, तब मैं दुनिया को बता रहा हूँगा, अभी की स्टोरी मैं शायद बता रहा हूँगा, क्या बता रहा हूँगा, एक उस साय के साथ, मतलब पूरी सुस्कारा देते हुए। क्या, एक तो वो साय जो है, एक तो मैं अगर सफल हो जाता हूँ मेरे चुने हुए रास्ते पर, मेरी अगर अभी जो मैं ये जो सेकेंड रास्ता है, जो कम लोगों के द्वारा लिया हुआ रास्ता है जो मैं चुन रहा हूँ, अगर इस रास्ते की वजह से अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं जो साय दूंगा वो हो सकता है कि मैं सेटिस्फाइड वाली साय होगी, एकदम शांति के साथ मैं लोगों को बता रहा हो सकता हूँ। या फिर अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो वो मेरी चॉइस रॉन्ग है करके मैं रिग्रेट के साथ बता रहा हूँगा। पर जो भी हो, कुछ सालों के बाद में जब मैं लोगों को बता रहा हूँगा कि इस अभी जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, दो रास्तों में से एक रास्ते को पकड़ने का, जो दूसरा वाला रास्ता है जो कम लोगों ने चला हुआ रास्ता है, उसका नतीजा क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी रिजल्ट इसका होगा, जो भी इम्पैक्ट होगा, चाहे ये सही डिसीजन हो तो उसका भी मेरे लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, अगर ये मेरा रास्ता गलत है तो उसका मेरी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पर जो भी होगा एक प्रभावी इम्पैक्ट होगा, और वो मैं फिर दुनिया को, फिर लोगों को कुछ सालों के बाद बताऊंगा कि मेरी चॉइस सही थी या गलत थी। तो ये है इस पोएम का टोटल मीनिंग। इन शॉर्ट अगर हम देखना चाहे तो इस पोएम्स के जरिए जो पोएट है हमें क्या बताना चाहते हैं, या इस पोएम की सेंट्रल आइडिया अगर हम देखें तो क्या है कि दिस पोएम मीन्स द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ एंड द चॉइसेस दैट शेप अवर फ्यूचर। Many alternatives are available at the time of choice, but man has to select one। मतलब कि जो पोएम है ये हमारे जीवन में हम जो चॉइसेस लेते हैं, हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उनके बारे में ये पोएम है कि ये बताती है कि पोएट इस पोएम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं उनका हमारे जीवन में आकार देने के लिए, हमारे जीवन पर प्रभाव डालने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व होता है। हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे रोड्स होते हैं, रास्ते होते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती है, पर हमें उनमें से एक ही डिसाइड करना होता है, और हमारा जो डिसीजन है वो सही है या गलत है ये प्रेजेंट में पता भी नहीं चलता, वो फ्यूचर में पता चलता है। और तब तक जब हमें अगर पता चले, अगर हमारा डिसीजन सही है तो बहुत बढ़िया है, पर अगर हमारा डिसीजन रॉन्ग निकल गया, अगर हमारा जो रास्ता है वो हमने गलत रास्ता चुन लिए, तो उसको हम अनडू नहीं कर सकते, मतलब कि हम फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर से शुरुआत हम नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक हमारी बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हमारे पास ओनली ऑप्शन रहता है दैट इज टू रिग्रेट, फिर पछतावे का एक, बस पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। तो अगर हम चाहे तो भी हम फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते। सो टेकिंग द राइट डिसीजन एंड मेकिंग करेक्ट चॉइसेस इज वेरी क्रूशियल टू एन इंडिविजुअल्स लाइफ। और करके सही डिसीजन लेकर सही रास्ते को चुनना हर एक इंसान को सही अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गलत डिसीजन हमारा पूरा जीवन स्पॉइल कर सकता है, खराब कर सकता है। और करके ये पॉइंट बोलते हैं कि द रोड नॉट टेकन, करके मैंने वो जो एक रास्ता है वो नहीं चुना, और मैं मतलब जो भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, मैंने मेरा खुद का एक अलग रास्ता चुना, जो कि दूसरा वाला रास्ता था। तो ये है ब्यूटीफुल पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आई होप आपको ये पूरी पोएम समझ गई होंगी। अगर आपको ये पोएम समझी है तो इस पोएम के मीनिंग्स वगैरह आप लिखिए, और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है, हमारी अगर प्रयास अच्छा लगा है वीडियो का, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ में ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो RTSL चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।